Good morning, everyone. How are you? Yes, fit and fine, ready, very good. Have you gone through the chapter that we have discussed till now about the Delhi rulers? Good. So today we are going to continue with this discussion. So till now we have discussed about the rulers of Delhi. Okay, what were the various dynasties that ruled Delhi and how we find out about them, from what are the sources, from where we get information about rulers. Okay, and then we discussed about how Delhi Sultanate expand from one garrison town, okay, to rest of the country. ठीक है, वो map थोड़ा सा ऐसे ही है. ठीक है, I'm not good at drawing. So this from garrison town, how Delhi Sultanate expanded into a large empire. Then we have started discussion on administration, ki how Sultan was taking control of this large territory that he had got under his control. ठीक है, large territory he has expanded under his control, how he was administering this territory, how he was consolidating its territory, कैसे वो उसको बना के रख रहा था. ठीक है, उस पे एडमिनिस्टर कैसे कर रहा था, रूल कैसे कर रहा था. So इसी में we have discussed about ki the king and the administration. We have discussed that king was appointed various bandagans, various client as his governors. ठीक है, and during the reign of Alauddin Khalji and Tughlaq, he was appointed military commanders. These bandagans were military commanders who were given iktas, and these military commanders, these governors, they were called iktadar or muktis. ठीक है, mukti और iktadar, and these iktadars, they were performing various functions. ठीक है, so we were discussing this point that these governors, these mukti or iktadar, they were performing various functions. The land was given to them by Sultan. That land was called ikta, and these were called iktadars or mukti. So what functions they were performing? Okay, which functions they were performing, what was their role, okay, or why Sultan has appointed, which work they were doing. So first thing, they were leading military campaigns. अब सुल्तान का मेन एम क्या था, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना. एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, मिलिट्री कैंपेन. जैसे यहाँ से उसने गैरिसन टाउन्स पे, पहले गैरिसन जो एरियाज गैरिसन टाउन्स थे यहाँ पे कंट्रोल किया. गैरिसन टाउन्स पे कंट्रोल करने के बाद देन हिंटरलैंड्स पे उसने अपना कंट्रोल करना एस्टैब्लिश किया. ठीक है, सो अब ये उसके मिलिट्री कैंपेन थे कि आगे हमने कहाँ पे फर्दर अटैक करना है. ठीक है, जो फर्दर उसके मिलिट्री कैंपेन्स थे, तो उनको कौन लीड करेगा, दीज इक्तादार, दीज मिलिट्री कमांडर्स. ठीक है, तो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करेगा. जो उनको इक्ता मिली है, जो लैंड टेरिटरी उनको मिली है, उस लैंड टेरिटरी में वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखेंगे कि कोई पर्सन उनके आगे रिबेल ना करे. ठीक है, जो टेरिटरी पे वो कंट्रोल करके है वो सारे लोग उनके अंडर काम करें. ठीक है, वहां पे सारा जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो बनी रहे, कोई सुल्तान के अगेंस्ट ना जाए. तो ये भी उनको देखना था कि वहां पे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बना रहे. ठीक है, फिर सुल्तान ने जो उनको इक्ता दी है, द लैंड और इक्ता दैट इज गिवन टू दीज मिलिट्री कमांडर्स, दीज इक्तादार्स, सो दे वर आल्सो कलेक्टिंग रेवेन्यू. जो वहां पे लैंड उनके पास है, उस लैंड से वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट लैंड दैट हैज बीन गिवन टू दीज इक्ता और इक्तादार्स और मुक्तिस, so they were also collecting the revenues. ठीक है, of these assignments कि वो भी जो पर्सन उनके कंट्रोल में आ रहे थे उनके वो रेवेन्यूज कलेक्ट कर रहे थे. रेवेन्यू मतलब टैक्स. ठीक है, जैसे लैंड रेवेन्यू भी था और भी अलग अलग चीजों पे टैक्स थे. so these were the various work, और उसी रेवेन्यू में से वो सैलरीज भी दे जो उन्होंने सोल्जर्स, क्योंकि मिलिट्री कैंपेन्स उन्होंने लीड करने हैं, तो मिलिट्री कैंपेन्स के लिए उनको सोल्जर्स चाहिए, सोल्जर्स भी उन्होंने मेंटेन करने हैं, और जो रेवेन्यू ने कलेक्ट किया उसी रेवेन्यू में से उन सोल्जर्स को वो सैलरीज भी पे करेंगे. ठीक है, वो सैलरीज भी पे कर रहे थे, आर्मी भी मेंटेन कर रहे थे. तो ये सारे काम दीज इक्तादार्स वर डूइंग.
अब ये जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया था कि राजा ने सामंतों को अपॉइंट किया था, तो सामंतों ने राजा के अगेंस्ट रिबेलियन कई बार कर दी थी, वो खुद राजा बन गए थे। तो सेम दीज इक्तादार कैन ऑल्सो डू, ये इक्तादार भी कर सकते थे। तो फॉर दिस सुल्तान हैज done some restrictions, he has done some assignments or arrangements for control on these sultan. So how sultan was controlling these mukti or these iqtadar, कैसे सुल्तान जो था इन मुक्तिज और इक्तादार के ऊपर अपना कंट्रोल बना के रख रहा था, ठीक है। सो कंट्रोल ओवर दीज मुक्तिज वर मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिसेस वाज नॉट इनहेरिटेबल, if they were assigned iktas for a short period of time before being shifted, कि उनको जो उन्होंने लैंड जो इक्ता उनके पास है that is only for a short period of time, इक्ता शॉर्ट पीरियड के लिए है, जो उनकी पोस्ट है जो उनको इक्तादार बनाया गया है वो हेरिडिटरी नहीं है कि एक इक्तादार है फिर सन विल बी नेक्स्ट इक्तादार, ठीक है, कि उनको वो एक लैंड जो टेरिटरी राजा ने असाइन की है तो वो उनकी फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बन गई, वो फैमिली प्रॉपर्टी नहीं बन गई। सो दैट कैन बी शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो सकती है कि एक इक्तादार को जो एरिया एक बार मिला है वो नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे इक्तादार को भी मिल सकता है, ठीक है, किसी और इक्तादार को वो दिया जा सकता है। तो इनहेरिटेबल थी, इक्ता शॉर्ट पीरियड के लिए मिलती थी। देन रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी तो इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस थी दैट हैज बीन इम्पोज्ड ऑन दीज इक्तादार्स, ठीक है। These harsh condition of service rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq, जब मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी का रेन था उस टाइम पीरियड में ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो बहुत ज्यादा इम्पोज होनी शुरू हो गई। These restrictions were imposed rigorously during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq. So these so what did king do? King ने क्या किया? He appointed accountants to check the amount of revenue collected. Accountants को appoint किया गया, ठीक है। अब accountants क्या करते थे कि जो भी वो revenue collect कर रहे हैं, जो भी जो salaries दे रहे हैं, ठीक है, so he was keeping an eye of all these. So accountant, they were appointed by the king to keep an eye on, check the amount of revenue that has been collected by muktis. Care was taken कि मुक्ति collected only those taxes which has been prescribed by the state, कि अब मुक्तिस रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे कोई भी टैक्स ना कलेक्ट करे, सिर्फ वही टैक्स वो कलेक्ट करेंगे जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है राजा के द्वारा, ठीक है। जो राजा ने टेस्ट को बताया है कि ये टैक्स आप कलेक्ट करोगे, सिर्फ वही टैक्स ये इक्तादार कलेक्ट करेंगे और कोई टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। सो प्रिस्क्राइब्ड टैक्स जो है वही कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो उसमें सोल्जर्स रखने हैं, आर्मी रखनी है, तो वो भी उतने नंबर ऑफ सोल्जर्स रखेंगे, प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, जो रिक्वायर्ड नंबर है, जितने सुल्तान ने बोला है कि इससे ज्यादा सोल्जर्स आप नहीं रख सकते, तो उससे ज्यादा सोल्जर्स नहीं रखे जाएंगे, ठीक है। सो they have to be taken, taxes only prescribed, and they have to keep the soldiers number as that has been required by the sultan. So these Delhi Sultan, in Delhi Sultan ne such arrangements they have been made to control these iqtadars. So as Delhi Sultan brought the hinterland of cities under control, अब इक्तादार जो सुल्तान थे उन्होंने हिंटरलैंड के साथ साथ यहाँ पे गैरिसन टाउन के साथ साथ हिंटरलैंड्स पे भी अपना कंट्रोल करना एस्टेब्लिश कर दिया था। तो वहां पे भी कुछ लोकल चीफ होते थे, कुछ एरिस्टोक्रेट्स होते थे, फोर्स किया गया कि आप किंग की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। उनको फोर्स किया गया कि किंग की अथॉरिटी को आपने एक्सेप्ट करना है, क्लियर। तो ये भी जो था एक, ये भी सुल्तान के सामने चैलेंज था। और उन्होंने जो वहां पे लोकल चीफ होते थे, एरिस्टोक्रेट्स होते थे, सिर्फ उनको वो अपॉइंट नहीं कर देते थे, ठीक है। सो दे फोर्स, जो भी वहां पे चीफ होते थे उनको वो फोर्स करते थे कि आप राजा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी, जब अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था तो स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल।
तो पहले तो इक्तादार को ये काम दिया हुआ था, कलेक्ट रेवेन्यू, पे सैलरीज, ठीक है, लेकिन जो अलाउद्दीन खलजी का टाइम पीरियड था, उन्होंने ये टैक्स कलेक्शन का सारा काम अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, दे टेकन ऑल दिस कंट्रोल इन देयर ओन हैंड. सो दिस under Alauddin Khalji, the state brought the assessment, collection of land revenue under its own control, rights of local chieftains to levy taxes. अब जो local chief होते थे, local chief कौन? इक्तादार. अब वो जो इक्तादार वहां पे उनका जो right था to levy taxes, टैक्स लगाने का, कलेक्ट करने का, that was cancelled. They were also forced to pay taxes. अब उनको भी टैक्स देना पड़ता था सुल्तान को, जो वहां पे गवर्नर्स मुफ्ती से, उनको भी सुल्तान को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है. सो सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड, केप्ट केयरफुल अकाउंट्स. तो जो सुल्तान के अकाउंटेंट्स थे या और एडमिनिस्ट्रेटर थे, ठीक है, अब ये तो सिस्टम रहा नहीं इनका, ये वाला जो कलेक्शन रेवेन्यू था, पे सैलरीज, ये सुल्तान ने अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है, और जो भी अकाउंटेंट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, अब वो जो थे क्या करते थे, दे मेजर द लैंड, पूरा अकाउंट मेंटेन करते थे, ठीक है. सम ऑफ ओल्ड चीफटेंस एंड लैंडलॉर्ड्स, और जो पुराने चीफ या लैंडलॉर्ड्स थे वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करके सुल्तान को ही पे करते थे. अब टैक्सेस किस किस तरह के लगाए जाते थे, वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस, ठीक है. जैसे अगर कोई कल्टीवेशन कर रहा है, कोई पीजेंट है, तो वो पीजेंट जितनी भी कल्टीवेशन लैंड के ऊपर कल्टीवेशन कर रहा है, उसमें से 50% जो थी, 50% किसको पे की जाएगी, 50% was being paid to the sultan as a revenue, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता था, खैराज. Yes, Nitya, what was the land revenue that on levied on the land? It was called, Hanji Nitya, please write in chat box. Be attentive in class, beta. So the revenue that was at that time levied on land, ठीक है, amount to be 50% of the peasant produce. वो 50% होता था जितना भी peasant produce कर रहा था. तो there were 3 type of taxes. एक टैक्स तो वो लगा रहे थे ऑन लैंड अबाउट 50%, ठीक है, देन ऑन कैटल के ऊपर भी, हॉर्सेस के ऊपर भी. तो वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस दे वर लेविंग ऑन दीज, ठीक है. सो नाउ द सुल्तान वाज लेविंग टैक्सेस ऑन वेरियस हिंटरलैंड्स. अब सुल्तान के पास क्या था, पहले तो सिर्फ गैरिसन टाउन, he has control over on garrison town, then later on he has extended his control to various hinterlands and garrison towns. तो various garrison towns, hinterlands पे भी उसने अपना कंट्रोल एक्सटेंड कर दिया. as he has made so much arrangements, ठीक है, सुल्तान has made so much arrangements to control over मुफ्तीस के ऊपर कंट्रोल करने के लिए he has made so much arrangements, बहुत सारी अरेंजमेंट की थी, but still there were some local chief, ठीक है, some local chief, as we have discussed in the starting of this chapter, कि it was very difficult for सुल्तान. अब सुल्तान यहाँ दिल्ली में है, ठीक है, so it is very difficult for him to keep control here on Bengal and to keep control here in Sindh, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में सिंध का इलाका है, and here on Bengal, because at that time transportation जो system था that was not so developed, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, so it was not easy to keep an eye on distant places by the Sultan from Delhi. So this way many chief थे on different areas, ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट एरियाज हैं, इन दिस गंगा, हियर गंगा रिवर फ्लोज, यहाँ पे क्या है, गंगा रिवर फ्लो करती है इन दीज एरियाज. तो यहाँ पे जो गंगा रिवर के आसपास यहाँ पे तो कई सारे फॉरेस्ट एरियाज हैं. तो इन फॉरेस्ट एरियाज में भी जो किंग का कंट्रोल था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कीप एन आई ऑन दीज एरियाज, ठीक है. इन एरियाज पे भी कंट्रोल करना जो था वो कई बार
बहुत मुश्किल हो जाता था. It was very difficult for king. So he has doing a lot to keep an administration, his administration and consolidation. He was doing a lot to keep control over the areas that were under his control. He was doing a lot of efforts to consolidate his the empire that he has created. From one city to large empire he has created. So it was very difficult for him to consolidate due to these challenges. अब इसमें एक और चैलेंज अभी हम डिस्कस करेंगे. एक तो ये चैलेंज हो गया, ठीक है, टू कीप एंड डिस्टेंस फार ऑफ प्लेसेस. ठीक है, सो दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर कि हाउ सुल्तान वाज, कि व्हाट रोल हैज बीन गिवन टू दीज इक्तादार्स, later on what were the changes and how he was keeping control over these iqtadars. Clear? Yes, Sanchit. Yes बच्चे, कि if my video is not visible so it may be due to network problem. ठीक है, so to rest of the student video is properly visible and audible beta. Okay, so maybe बच्चे due to network problem it will be. Okay, so next कि how Sultan was consolidating his administration. So this was he keeping in control, he was administering his territory. Okay, and now how he was consolidating. So which challenges Sultan was facing? Okay, so first challenge that the Sultan was facing, okay, he was forcing even the chief to accept his authority. But the challenges that he was facing, okay, first challenge, what was the first challenge? To keep control over far off places. Okay, keep control on distant places. Distant mean far off places. जो far off places थे उन पर king का control करना due to various reason it was very difficult. So these were the challenges. Then कुछ local chief, जो local chief and their fortifications, and so we are also discussing this point, and their fortifications. So as we have discussed कि here are the many forest area, यहाँ पे कुछ forest areas भी हैं. So it is very difficult, ठीक है, in Madhya Pradesh, in this Jharkhand area, in Gangetic Plain. This is the Ganga river, the plain area that is besides these river, that is Gangetic Plain. ठीक है, तो इस प्लेन के आसपास के एरियाज में जो यहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो देयर वर आल्सो सम लोकल चीफ. सो दे हैव मेड देयर ओन फोर्टिफिकेशन. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर सुल्तान टू कीप एंड कंट्रोल ओवर दीज लोकल चीफ. तो सुल्तान के पास इन लोकल चीफ के ऊपर कंट्रोल करना सम टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, बिकॉज इन माउंटेनियस एरियाज, ठीक है, अगर कुछ माउंटेनियस एरिया है, कुछ रॉकी एरिया है, इफ देयर इज वेरी रफ एरिया, यस, सो लोकल चीफ एंड देयर फोर्टिफिकेशंस, जो लोकल चीफ थे, they have also made there some fortification. They were living in bamboo graves. ठीक है, जो इंडिया में बैम्बू हमें मिलता है that is very strong, बहुत strong है. ठीक है, so इतना वो strong है कि कई बार फायर का भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता. So the chieftain, the chief होते थे, they were living in these forest. ठीक है, chief in forest के बीच में रहते थे, and they were also having their own cattle, crops. They were all having these all materials, water, etc. all with them. So उन फॉरेस्ट के बीच में कोई भी एंटर नहीं कर सकता था. ठीक है, जैसे इन्होंने अपनी फोर्टिफिकेशन, ये सारे आसपास में फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सारा फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है, इनके बीच में लोकल चीफ्स रह रहे हैं. तो ये फॉरेस्ट जो है ये उनके लिए फोर्टिफिकेशन की तरह काम कर रहा है. तो पूरा किलाबंदी तो उन्होंने की नहीं है, तो ये जो फॉरेस्ट एरिया है, तो फॉरेस्ट एरिया ही उनके लिए क्या बन गया है, फोर्टिफिकेशन बन रही है. इनके बीच में ही वो बैम्बू ग्रेव्स में रह रहे हैं, सारा अरेंजमेंट उन्होंने किया हुआ है. तो कई बार आर्मी के लिए इनके साथ जो था वो इन तक पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल था. क्लियर?
अब दीज आर द चैलेंजेस। अब चैलेंजेस मतलब कि सुल्तान ने इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया। अब सुल्तान के सामने चैलेंजेस क्या है, चुनौती क्या है कि उसको अपने ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन कैसे करके रखना है। इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन तो उसने बना लिया, ठीक है, उसको कंसोलिडेट कैसे करके रखना है, उसको मेंटेन करके कैसे रखना है। तो वो इसके सामने चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी, कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो दूर के प्लेसेस थे, डिस्टेंट प्लेसेस, उन पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल था ड्यू टू कम्युनिकेशन, ड्यू टू वेदर कंडीशंस, बैड वेदर कंडीशन हो गई, कम्युनिकेशन गैप हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से उन पर कंट्रोल करना मुश्किल था। फिर जो लोकल चीफ और फोर्टिफिकेशंस थे उन पर भी कंट्रोल करना मुश्किल था। तो यहाँ पर भी जो दूर के जो एरियाज थे, सो इवन इन द गंगेटिक प्लेन दिस आर फॉरेस्टेड एरिया, जो गंगा प्लेन में फॉरेस्टेड एरियाज थे। सो द सुल्तान आर्मी, जो सुल्तान की आर्मी थी, उसके लिए यहाँ तक पहुंच पाना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सो सुल्तान फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, सुल्तान की फोर्सेस कई बार वहां तक पहुंच भी नहीं पाती थी उन फॉरेस्टेड एरियाज में। सो लोकल चिफटेन एस्टैब्लिश द रूल, ठीक है, जो लोकल चीफ थे उन्होंने अपना रूल वहां पे एस्टैब्लिश किया हुआ था। और जो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, दे कुड नॉट फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज। अगर वो कभी इन एरियाज में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर भी लेते थे तो वो सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता था, वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाता था। ठीक है, सो देयर कंट्रोल वाज आल्सो ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो अभी इसमें चैलेंजेस में एक और आएगा, अटैक्स फ्रॉम मंगोल्स या मंगोल अटैक्स। अब मंगोल क्या है, मंगोल इज अ रीजन, ठीक है, जैसे यहाँ पर मंगोल एक इधर, अब आज तो मंगोलिया यहाँ पे कंट्री है, ठीक है। अर्लियर यहाँ पे जैसे आप सभी को पता है कि देयर आर हिमालयस, यहाँ पे हिमालयस माउंटेन्स हैं, ठीक है। अगर ज्योग्राफी में आपने रीड किया होगा तो यहाँ पे हिमालयस माउंटेन्स हैं, ठीक है, इधर चाइना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाइना का पूरा एरिया था, ये चाइना, तो इधर यहाँ पे उस टाइम पर इन मंगोल्स ने चाइना के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। चाइना, फिर यहाँ पे मिडल ईस्ट, ईरान, इराक, ठीक है, अफगानिस्तान, इधर सारे एरियाज में कंट्रोल कर लिया था। और सारे एरिया में कंट्रोल करने के बाद फिर ये इंडिया की तरफ आ रहे थे, ठीक है, जो मंगोल्स थे। तो वो सारे एरिया से करने के बाद इंडिया की तरफ मंगोल्स थे, वो अटैक कर रहे थे। अब इधर से तो वो अटैक करेंगे नहीं क्योंकि इधर हिमालयाज है, तो वो यहाँ से जिधर से दिल्ली सुल्तान आए थे, तो दिल्ली सुल्तान उसी एरिया से वो अटैक करने के लिए आ रहे थे। दे वर आल्सो एंटरिंग फ्रॉम दिस एरिया। तो सुल्तान के लिए, दिल्ली सल्तनत के लिए, इनके लिए भी कंट्रोल करना ये भी एक चैलेंज था। मंगोल्स अंडर द गेंगीज खान, और मंगोल्स का उस टाइम पे लीडर कौन था, गेंगीज खान, ठीक है, चंगेज खान भी उसको बोलते हैं। तो वो गेंगीज खान उनका लीडर था जो कि अटैक कर रहा था, जिसने कि इतना बड़ा मंगोल एम्पायर एस्टैब्लिश कर लिया था। तो इतना बड़ा ये मंगोल एम्पायर था उस टाइम पे, जब यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का रूल था, तो इधर मंगोल ने अपना एम्पायर क्रिएट किया हुआ था, ठीक है। सो दीज मंगोल्स अंडर द गेंगीज खान इन्वेडेड ट्रांसोक्सियाना। तो ट्रांसोक्सियाना ये पूरा जो एरिया है ना इस टाइम पे, ये ईरान इराक वाला एरिया, इसको ट्रांसोक्सियाना बोलते थे। तो इस एरिया पे उसने जब अपना कंट्रोल कर लिया, तो फिर वो इधर नॉर्थ ईस्ट, ईरान, ठीक है, सभी तरफ कंट्रोल कर लिया। तो फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़ा, ठीक है, मंगोल्स वो दिल्ली की तरफ बढ़ा। सो दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लॉट सून आफ्टर। ऑनस्लॉट की उन्होंने यहाँ पर भी बहुत वायलेंट अटैक करने की कोशिश की, जिसका कि दिल्ली सुल्तान ने आगे जवाब दिया। सो मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। जो अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के रूल के टाइम पीरियड में ये जो मंगोल का अटैक था ये और ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है, इनका अटैक और बढ़ गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। So this forced these two rulers to mobilize a large standing army, जिसकी वजह से ये दो जो रूलर थे उस टाइम पर, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, ठीक है, अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक, तो ये जो रूलर्स थे इनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज रूलर दे which measures they taken
to save themselves from the attack of Mongols. ठीक है, यस, मोहम्मद तुगलक वाज सुल्तान. हमने जब रूलर्स, पूरी रूलर्स ऑफ दिल्ली का पूरा टेबल जो आपकी बुक में बना हुआ है उसमें देखा था, तो वेरियस रूलर्स ऑफ दिल्ली, तो उसी में देखो अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद तुगलक, ये सारे रूलर्स उसमें हैं. ठीक है, तुगलक डायनेस्टी में जो सेकंड रूलर था मोहम्मद तुगलक, तो मोहम्मद तुगलक भी रूलर था, अलाउद्दीन खलजी भी रूलर था. इनके टाइम पीरियड में मंगोल्स का जो अटैक था वो ज्यादा होना शुरू हो गया था. ठीक है, तो अब इन दोनों सुल्तानों ने कि कैसे मंगोल के अटैक के साथ व्हाट दे डिड, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कैसे अपने बचाव किया, अपना डिफेंस किया, आगे अटैक किया. सो व्हाट दे डिड, सो दैट वी विल डिस्कस. सो you will read these measure taken by Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq from your book. ठीक है, yes, it is so discuss this, all these points, read all these points from your book, sorry, ठीक है, from Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq. So first we will discuss only 1 or 2 points, later we will discuss tomorrow कि what they did to save themselves from the attack of Mongols. So in during the period of Khalji, अगर खलजी के टाइम पीरियड की बात करें तो दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस, 2 बार उसने अटैक किया. ठीक है, 1299 में और 1300 में. तो इसने क्या किया, ही वाज मेंटेन्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, तो उसने बहुत बड़ी आर्मी जो थी वो खड़ी कर ली अलाउद्दीन खलजी ने. ठीक है, तुगलक ने क्या किया, ही वाज आल्सो अटैक्ड इन अर्ली इयर्स. मोहम्मद जब तुगलक का टाइम पीरियड था तो उस टाइम पे भी अटैक हुआ, तो मंगोल आर्मी को उसने हरा दिया था. मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड. तो मोहम्मद तुगलक बड़ा कॉन्फिडेंट हो गया कि आई एम वेरी ब्रेव, कि मैंने तो उसको हरा दिया है. ठीक है, तो ही देन प्लान टू अटैक ऑन ट्रांसओक्सियाना. तो उसने क्या प्लान किया कि अब मैं यहाँ पर अटैक करूंगा, मंगोल्स के ऊपर अटैक करूंगा. कि जब उसने पहले मंगोल्स ने अटैक किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरा दिया, तो फिर वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया. फिर उसने सोचा कि अब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा. सो देयरफॉर ही रेज्ड ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. तो उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी अलाउद्दीन खलजी ने भी क्रिएट की थी और इसने भी, ही हैज मेंटेन्ड रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी. दोनों ने ही बड़ी आर्मी अपने अपने टाइम पीरियड में मेंटेन की. देन अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड न्यू गैरिसन टाउन नेम सीरी. अलाउद्दीन खलजी ने क्या किया, आर्मी तो दोनों ने क्रिएट की, अलाउद्दीन खलजी ने एक सीरी नाम का नया गैरिसन टाउन क्रिएट कर दिया. ठीक है, जहाँ पे कि वो सोल्जर्स, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी वो बड़ी बना रहा है, तो उन सोल्जर्स को रखने के लिए उसने नया गैरिसन टाउन बनाया. लेकिन मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने गैरिसन टाउन नहीं बनाया. ठीक है, उसने जो भी दिल्ली के सारे पुराने सिटी थे, जिसमें कि दिल्ली कुन्हा भी था, तो जितने भी दिल्ली के ओल्ड सिटीज थे उन सभी को, वहां से जो भी लोग रहे थे उन लोगों को घर भेज दिया, वहां से निकाल दिया. ठीक है, कि यू कैन नाउ मूव फ्रॉम हियर टू एनी अदर प्लेस, कि यहाँ से कहीं और दूसरी जगह चले जाओ. सो he has got emptied of his residence and soldiers garrisoned there. और सोल्जर्स को उन सिटीज में, इसने तो नया गैरिसन टाउन बना लिया अलाउद्दीन खलजी ने, लेकिन तुगलक ने वहीं पे क्या किया, वहीं पे उन सोल्जर्स को वहां पे उनको जगह दे दी. जो लोग थे वहां पे रह रहे, रेजिडेंट रह रहे थे, उनको वहां से निकाल दिया गया. ठीक है, सो उनको कहाँ भेजा गया, तो न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद. तो यहाँ पर उसकी कैपिटल थी दौलताबाद इन साउथ, तो दिल्ली से साउथ में उन्हें भेज दिया गया. ठीक है, ऑल पर्सन्स दे वर मूव्ड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. सो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन अबाउट दीज चैलेंजेस फ्रॉम मंगोल अटैक्स, कि हाउ अलाउद्दीन खलजी एंड तुगलक they adopted different defensive measures or offensive measures, ठीक है, to save themselves, to save their kingdom empire from these Mongol attacks. So read the chapter thoroughly, underline the various points. ठीक है, I hope you have noted down all the points. Okay then, thank you and take care everyone.